Hello everyone. So today we are going to study about this topic, that is force between current carrying parallel conductors. Okay, force between current carrying parallel conductors. That means if we take two conductors parallel with respect to each other and current is flowing through both the conductors, now direction of current may be same or it may be reverse. Then what are the observations that can be seen? Okay, now सबसे पहले देखो, force between current carrying parallel conductors, that means when two current carrying parallel conductors are placed with respect to each other, they exert some force. Now this force may be attractive, this force may be repulsive. Who first observed this phenomenon? This phenomenon was first observed by Ampere. And based on his observation, to prove his observation, Ampere ने क्या किया? He carried out two experiments. So here I have already drawn the diagram. Okay. So experiment number one. Experiment number one में क्या हुआ देखो. Now here we have taken a mercury bath. Okay. Here mercury acts as an electrolyte. Okay. Or you can say mercury is also a conductor ना. So it is acting like a conducting path. Now यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी को कनेक्ट कर दिया और ये कनेक्शन कुछ ऐसा है देखो. यहाँ से बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है. ये करंट फ्लो होते 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 यहाँ पे आ गया. कहाँ पे? मर्क्यूरी बाथ पे. मर्क्यूरी बाथ पे यहाँ पे इनिशियली दो कंडक्टर ऐसे रखा हुआ था. दो कंडक्टर ऐसे रखा हुआ था. दैट मीन्स बोथ द कंडक्टर्स वर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. नाउ यहाँ से मर्क्यूरी से करंट गया, दोनों कंडक्टर में करंट सेम जाएगा. ओके, सो जब दोनों कंडक्टर में से करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, इट वाज ऑब्जर्व दैट बोथ द कंडक्टर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर. It means what? That both the conductors are what? Attracting each other with some amount of force. So यहाँ से क्या मालूम पड़ा? यहाँ से ये मालूम पड़ा that when two parallel current carrying conductors are placed with respect to each other such that same current flows in the same direction. Okay, it may be same current, it may be different current, but if current flows in the same direction through the conductor, then what will happen? They will attract each other. Now ये हो गया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. सो लेट अस कम टू द सेकंड एक्सपेरिमेंट. नाउ सेकंड एक्सपेरिमेंट सेम, वी हैव टेकन वन मर्क्यूरी पाथ. ओके, कंडक्टिंग पाथ, मर्क्यूरी पाथ, एंड हियर वी हैव कनेक्टेड दिस वन इन सच ए वे. अच्छे से देखो, यहां से करंट गया, यहां से करंट आया, एंड हियर वी हैव कनेक्टेड वन कंडक्टर. सो इनिशियली अगेन द कंडक्टर वर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर. सो क्या होगा? यहां से करंट आएगा एंड करंट विल गो इन दिस वे. यहां से करंट जाएगा मर्क्यूरी पे और मर्क्यूरी से यहां पे जाएगा. दैट मीन्स ऐसे करंट घूम के यहां पे जाएगा. सो इन बोथ दिस कंडक्टर, okay, same amount of current is flowing, but what is the direction of current? The direction of current is opposite to each other. So when opposite current flows through the conductor, two parallel conductors, it was seen that both the conductors moved away from each other. That means दोनों कंडक्टर पे एक फोर्स लगा, which is what? Which is repulsive. So this both conductor moved away, showing that when opposite current flows through the conductor repels each other. And here it showed that when same current flows through two parallel conductors, they attract each other. Again, these observations were first proved experimentally by Ampere. Okay, so this is what is called force between current carrying parallel conductors. Now यहाँ पे देखो, हाँ, now suppose here I have taken one parallel conductor and here another parallel conductor. Say this is conductor 1 and this is conductor 2. Now here again I have taken two conductors, okay, two long conductors placed parallel to each other. Again same, this is conductor 1, this is conductor 2. But what is the difference? In this two conductor, current is flowing in the same direction. But here we are not taking the same current, we will be taking different current. Say here the current is I1 and here the current is I2. Say here also current is flowing I1 and here current is flowing I2, but in what? In opposite, that means in reverse order. Now अच्छे से समझो, हाँ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. तो मैंने पकड़ लिया ये जो कंडक्टर है ये भी अपने चारों तरफ क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा. और ये जो कंडक्टर है ये भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक
फील्ड बनाएगा ना। ये मैग्नेटिक फील्ड के वजह से क्या होगा, ये जो सेकंड कंडक्टर है इस पे एक फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है? ये जो सेकंड कंडक्टर है इस पे क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा। नाउ यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, ऐसा हम लोग इजीली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ होगा, इनटू द प्लेन। सेम हियर आल्सो यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, नाउ ये जो कंडक्टर है पहला, अच्छे से समझना, हाँ, पहला कंडक्टर के लिए दूसरे पे कितना फोर्स लगेगा, ये डायरेक्शन में, एंड फोर्स मैंने ले लिया F2 लग रहा है। ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड हियर आल्सो, ये भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा, ये भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और यहाँ पे एक फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स है वो किस तरफ लग रहा है, इस तरफ। ये जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगा, ये फोर्स इस तरफ लगेगा। अगेन, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करो, यू कैन इजीली फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ what you say force, and what will be the direction of magnetic field, into the plane of the paper, into the plane of the paper, okay, or you can see into the plane of the board. Now यहाँ पे करंट कौन सा कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, I1 में से, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा कंडक्टर बना रहा है, ये वाला कंडक्टर बना रहा है। इस वाले कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड वजह से इस वाले कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड सपोज V1 है, यहाँ पे भी सेम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, V1। बात समझ में आ रहा है? Current is flowing through the first conductor. As a result, magnetic field is created by the first conductor, and as a result of the magnetic field of the first conductor, there is some amount of force on the second conductor. Okay. Now, what is the formula for magnetic field of a straight conductor? We already know what is the formula for magnetic field of a straight conductor. ये हम लोगों ने पहले ही derive करके रखा हुआ था। क्या था? Mu naught I by 2 pi R. Say R is the distance between the two parallel conductors. R is the distance between the two parallel conductors. So, therefore, force on second conductor, किसके वजह से? Due to first conductor. Now, force, ये force का भी हम लोगों ने पहले derivation किया हुआ है. What is the formula for force? ओके, फोर्स व्हाट टू से का फॉर्मूला हम लोग को पहले मिला हुआ है, दैट इज हाउ मच, BIL sin थीटा, BIL sin थीटा। नाउ अच्छे से समझ लो, कौन सा कंडक्टर में फोर्स लग रहा है, सेकंड कंडक्टर में, तो फोर्स क्या होगा, F2। मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, फर्स्ट कंडक्टर, तो क्या आएगा, B1। ठीक है, करंट किस कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, सेकंड कंडक्टर में से, I2। बात समझो, ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कंडक्टर के लिए है कि नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट कंडक्टर बना रहा है, लेकिन हम लोग ले कौन सा कंडक्टर ले रहे हैं, हम लोग सेकंड कंडक्टर ले रहे हैं, तो सेकंड कंडक्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2। ठीक है, और लेंथ हम लोगों ने ले लिया, दैट ऑल आर सेम लेंथ, सो वी विल टेक L sin theta, here theta is how much, 90 degree. Why? I told you that magnetic field is into the plane. Okay, magnetic field का डायरेक्शन क्या होगा, into the plane. So F2 B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर, सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट B1, तो यहाँ पे क्या आएगा, I1 2 pi R into I2 L. Okay, sin 90 it will be 1. So what will be the force, दिख रहा है कि नहीं, so what will be the force on the second conductor due to the magnetic field of the first conductor equals to mu naught I1 I2 into L divided by 2 pi R. So we can easily see that the force is not depending on the current of one conductor, it is actually depending on the product of both the current. दोनों कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसी के प्रोडक्ट के ऊपर ये डिपेंड हो रहा है कि नहीं। नाउ जब सेम करंट फ्लो होता है तब क्या करेगा, पकड़ लो, दो फोर्सेस है F1 और F2, तो ये दोनों क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा, एंड यहां पे क्या होगा, F1 and F2 they will repel each other. So easily from the diagram we can see na that both the forces are what, opposite to each other. So we can easily write, because magnitude तो सेम ही आएगा, length सेम है, current का product सेम है, distance सेम है, mu naught by 2 pi constant. So therefore
F1 will be equal to F2, just they will be opposite to each other. They will be opposite to each other. तो पहला कंडक्टर जो फोर्स लगाएगा, दूसरा कंडक्टर भी वही फोर्स लगाएगा, सिर्फ दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट. देखो ऑपोजिट है ना, ये इस तरफ, ये इस तरफ, यहाँ पे भी ये इस तरफ, ये इस तरफ. सो फोर्सेस आर व्हाट, ऑपोजिट टू ईच अदर. तो ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, ओके, exerted by a parallel conductor on another conductor. Okay, तो हो गया. नाउ देखो, हाँ, इसी के लिए ना, जब एक सोलेनॉइड में से करंट फ्लो होता है ना, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए सोलेनॉइड, पकड़ लो ये एक सोलेनॉइड है, ठीक है, ये इसमें से करंट फ्लो हो रहा है. तो ये सोलेनॉइड को जैसे बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे और इसमें से करंट फ्लो होगा. नाउ करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है ना, दैट मीन्स ईच टर्न में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन. करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन. तो अगर हम लोग इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दे, ओके, और जो कॉइल्स है दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, सो करंट क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में पैरेलली फ्लो हो रहा है. सो क्या होता है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए सोलेनॉइड, when current flows through a solenoid, then it contracts. It contracts. Contract मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं, expand नहीं होगा. क्यों contract होगा? Because same direction में current flow हो रहा है, so they will what? Attract each other. तो अगर attract होगा तो वो क्या होगा? वो contract हो जाएगा. Okay? The same concept is used in a spring. पकड़ लो, ये एक spring है. कौन सा spring? Current carrying spring. करंट कैरिंग स्प्रिंग. ये करंट कैरिंग स्प्रिंग में से हम लोगों ने करंट पास किया बैटरी के साथ कनेक्ट करके. नाउ करंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. करंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे हम लोगों ने एक वेट लगा दिया mg. तो क्योंकि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है थ्रू द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा. एज ए रिजल्ट द स्प्रिंग विल लिफ्ट द मास. लिफ्ट द मास. ओके, सो ऐसा क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. व्हाट हैपेंस इफ ए मास इज टाइड टू ए स्प्रिंग एंड करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू द स्प्रिंग. Okay, so what will happen? The spring will lift up the mass. Why? Because current is flowing through the same direction within the spring, and the spring coils are parallel to each other, so they will attract each other, and as a result of this attractive force, it will lift up the mass. Okay, or lift up the weight. ठीक है.